ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ ਸਕੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, 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 Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਬੁਰਾ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ, ਜੋ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਚ ਜੋ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਖੁਦਾ, ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਚਟਾਨ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਚਾਵਣ ਵਾਲਾ। ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God, खुदा पिता परमेश्वर इस ग्रुप रे खुदावन हर एक इंसान हर एक फैमिली नु खुदावन ते लहू च छुपा दिंदी हां। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदावन ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਖੁਦਾवन ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਲॉर्ड जीसस जो अजे नहीं आए खुदा पिता परमेश्वर जितने भी खुदावन तो ना लेके आ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, खुदा पिता परमेश्वर ताकि ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਖੁਦਾवन ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਣ। ਲॉर्ड जीसस ਤੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਸਕਣ। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदावंद जिंदा खुदा लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदावंद दुआवां ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ खुदा लॉर्ड जीसस ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ। खुदावंद ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ लॉर्ड जीसस। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ लॉर्ड जीसस ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, हालेलुया। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गॉड खुदावंद ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ लॉर्ड जीसस। ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ खुदा लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदावंद ਦੀ ਤਾਰੀਫ, 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 ਤਾਰੀਫ ਹੋ लॉर्ड जीसस ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। खुदावंद ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ लॉर्ड जीसस। ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ लॉर्ड जीसस ਦੇ ਬਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। जीसस खुदावंद ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਸਤੇ। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदावंद ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ खुदा पिता परमेश्वर खुदावंद तू हर एक नू खुदावंद अपने खुदावन पाक रूह दे नाल खुदा भर दे लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यस लॉर्ड खुदा पिता परमेश्वर हर एक ते दया कर खुदावन हर एक नू खुदावन प्यार दे नाल भर दे लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदावन अपने मुख दा चानन खुदावन साडे ते चमका खुदावन लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, God. खुदावन दी तारीफ होवे ते तारीफ ते धन्नवाद हो लॉर्ड जीसस। खुदावन पिता पेशर आज दी सारी मीटिंग नु खुदावन मैं तेरे हत्थां विच सौंप दिंदी हां लॉर्ड जीसस। खुदावन तू सानू चला, तू सानू गाइड कर खुदावन, तू सानू समझ दे, तू सानू बुद्धि दे लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस खुदा पिता पेशर तू सानू चला लॉर्ड जीसस, तू साडी अगुवाई कर खुदावन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन दी तारीफ होवे, खुदावन दे धन्नवाद होवे लॉर्ड जीसस। खुदावन तू जिंदा खुदा लॉर्ड जीसस, हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. खुदावन दे धन्नवाद होवे लॉर्ड जीसस। खुदावन ये सारी मीटिंग नु खुदावन तेरे हत्थां विच सौंप दिंदी हां लॉर्ड जीसस। खुदावन जो भी खुदावन गीत गावे लॉर्ड जीसस, तू हर एक दे गले नु छू लॉर्ड जीसस, मसा कर ब्लेस कर लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदावन लॉर्ड जीसस जो गीत सुन भी खुदावन उन्हां नु भी आशीष और बरकत देना खुदावन।
खुदावन तेरी हजूरी खुदावन साडे नाल होवे लॉर्ड जीसस हालेलुया। खुदावन तू सानू अगे अगे होके गवाही करने वाला खुदा होवे लॉर्ड जीसस हालेलुया। खुदावन असीं किसे होर खुदा नू नहीं सजदा करिए, खुदावन असीं हमेशा तेनू सजदा करिए खुदावन, क्योंकि तू साडा जिंदा खुदा है लॉर्ड हालेलुया। ओ यस लॉर्ड जीसस, क्योंकि तू मेहमा ते बड़ाई दे जो खुदावन लॉर्ड जीसस असीं हमेशा तेनू ही बड़ाई है लॉर्ड जीसस हालेलुया। यस लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड खुदावन। ओ लॉर्ड जीसस खुदावन असीं जो भी खुदा मंगिया लॉर्ड जीसस पा लिया खुदावन, तेरे प्यारे ते पवित्र नाम च मंगदे हां, आमीन आमीन, प्रेज लॉर्ड। और अगे असीं गीत गांदे हां, प्रभु दी महिमा दे लई गीत गावांगे। सिस्टर सानिया हुणां ने मिलके सिस्टर सानिया हुणां ने मिलके असीं प्रभु दी महिमा लई गीत गावांगे। थैंक यू सिस्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मैनू यसू दा लहू ऐ तां धोई जांदा ए, मेरा सब कुछ नवा नवा होई जांदा ए, मेरा सब कुछ नवा नवा होई जांदा ए। मैनू यसू दा लहू ऐ तां धोई जांदा ए, मेरा सब कुछ नवा नवा होई जांदा ए, मेरा सब कुछ नवा नवा होई जांदा ए। हत्थां पैरां विच जदों किले ओहदे ठोकदे, हत्थां पैरां विच जदों किले ओहदे ठोकदे, मेरे हिस्से आंदी जो सजावां दुख रोकदे, मेरे हिस्से आंदे जो सजावां दुख रोकदे, सजावां दुख रोकदे। ओदी वेख कुर्बानी दिल रोई जांदा ए, मेरा सब कुछ नवा नवा होई जांदा ए, मेरा सब कुछ नवा नवा होई जांदा ए। मैनू यसू दा लहू ऐनी खुशी दित्ती जेड़ी जांदी ए संभाली ना, ऐनी खुशी दित्ती जेड़ी जांदी ए संभाली ना, फजलां दी गल जेड़ी जावे इत्थे टाली ना, फजलां दी गल जेड़ी जावे इत्थे टाली ना, जावे इत्थे टाली ना। बोझ अपने ते मेरा यसू उठाई जांदा ए, मेरा सब कुछ नवा नवा होई जांदा ए, मेरा सब कुछ नवा नवा होई जांदा ए। मैनू यसू दा लहू इंज धोई जांदा ए, मेरा सब कुछ नवा नवा होई जांदा ए, मेरा सब कुछ नवा नवा होई जांदा ए। ओदी दित्ती जिंदगी जेड़ी मैं बितानी हां, ओदी दित्ती जिंदगी जेड़ी मैं बितानी हां, कीतियां दुआवां विच सब कुछ पानिया, कीतियां दुआवां विच सब कुछ पानिया, सब कुछ पानिया। यसू रूजा जिसम च समाई जांदा ए, मेरा सब कुछ नवा नवा होई जांदा ए, मेरा सब कुछ नवा नवा होई जांदा ए। मैनू यसू दा लहू इंज धोई जांदा ए, मेरा सब कुछ नवा नवा होई जांदा ए। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise Lord. Thank you, Sister G. God bless you. खुदावंद दा नाम आशीष बरकत देवे। ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚ ਨਵੀਂਪਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਧੋਂਦਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ।
और परमेश्वर सानू हर वक्त नवा 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 बनाना चाहता, क्योंकि वो सानू अपने वांगू पाक ते पवित्र बनाना चाहता। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। करम दी तारीफ होवे। और अगे असी प्रभु दी महिमा लई गीत गावांगे सिस्टर सुशीला हुणां नाल मिल के। सिस्टर सुशीला हुणां नाल, हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र है कि आज खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आज उसकी स्तुति आराधना करने के लिए, उसकी जय जयकार करने के लिए आज मुझे वक्त और मौका मिला है। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार करती हूँ। ठीक है। और साथ ही कहना चाहती हूँ कि जो मेरे अंदर है ये वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। मुझे ये कहकर ये गीत स्टार्ट करती हूँ। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरे बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरे बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा में सबको सुनाऊं। यीशुआ यीशुआ
मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। आमीन। थैंक यू जीसस। Amen. Praise the Lord. Thank you, Sister Ji. God bless you. ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਾਨ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Praise the Lord. और मैं एक वर्स पढ़ूंगी, ज़बूर 138। मैं अपना सिर उपासना ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁਕਾਰਨ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਰਵਿੰਦਰ। Praise the Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ, ਦਿਲ ਦੀ ਪੁਗਾ ਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ। ਲੰਗੜੇ ਚਲਾ ਦੇ ਅੱਖਾਂ, ਅੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ, ਬੋਲੇ ਸਭ ਸੁਣਨ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਪੈਣ ਬੋਲ।
ਲੰਗੜੇ ਚਲਾ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ, ਬੋਲੇ ਸਭ ਸੁਣਨ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਪੈਣ ਬੋਲ, ਸਭ ਜਕੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛੜਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ, ਦਿਲ ਦੀ ਪੁਗਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਕਰ ਦਿਓ ਚੰਗੇ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੇ, ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ। ਕਰ ਦਿਓ ਚੰਗੇ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੇ, ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ। ਧੋ ਕੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਾਕ ਬਣਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਧੋ ਕੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਾਕ ਬਣਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ, ਦਿਲ ਦੀ ਪੁਗਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਰੱਖ ਕੇ ਈਮਾਨ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਵੇਖ ਸਿਰ ਵੀ ਝੁਕਾਏ ਨੇ। ਰੱਖ ਕੇ ਈਮਾਨ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਵੇਖ ਸਿਰ ਵੀ ਝੁਕਾਏ ਨੇ। ਸਭ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ, ਦਿਲ ਦੀ ਪੁਗਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਚੂ ਆ ਤੇ ਚਾਚਾ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਨਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਰੇਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਲੀਵਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਆ ਉਹ, ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਨਾੜ ਨਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਣ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਦਰੂਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਚੂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਚਾਚੂ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਚਾਚੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ ATM ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ, ਵੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਲ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਘਰੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵੀ 15 ਮਿੰਟ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ATM ਚੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਆਇਆ ਇਹ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਜਦੋਂ ਪਸੀਨਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਪਲ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕੂਟੀ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਕੂਟੀ ਦਾ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਪਲ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ
ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੁੰਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਹਨਾ। ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਖਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੁੱਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਓਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਜੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਆ, ਤੇ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਖੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸਕੂਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਢਵਾ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਈਮਾਨ ਇੰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰਿਗਰੈਟ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you sister जी, बहुत ही खूबसूरत गवाही। परमेश्वर इसी तरह ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਸਦੀਪਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਇਆਵਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਹਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਗੀਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Thank you, Jesus. 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 Shinde bor 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 zidi bidi gara bara 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 shara bara shara bara shara bara shara bara shara bara. La 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 gara bara 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 shara bara shara bara shara bara shara bara shara bara shara bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, Lord Jesus ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਖੁਦਾਵੰਦ, Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇਖਿਓ, Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓ ਯੈਸ ਲੋਰਡ, ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ, Lord Jesus, ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਲਹੂ 'ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓ ਯੈਸ Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ, Lord Jesus, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਖਿਆਲ ਖੁਦਾਵੰਦ, Lord Jesus, ਹਰ ਬੋਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ, Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓ ਯੈਸ Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾ, Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਖੁਦਾਵੰਦ
मूसा ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰ ਉਸੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰ ਉਸ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰ ਭਰ ਦਿਓ Lord Jesus hallelujah oh yes Lord ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ Lord Jesus hallelujah thank you Jesus thank you Jesus God ਖੁਦਾਵੰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਖੁਦਾ ਪਾ ਲਿਆ Lord Jesus ਆਮੀਨ Lord ਔਰ ਅੱਗੇ ਮਾਈਕ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਹੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵਫਾ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨਗੇ ਸਿਸਟਰ ਜੀ हाँ जी ਸਿਸਟਰ ਵਫਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇ जी ठीक है प्रेज द लॉर्ड जी लॉर्ड ब्लेस यू सोनिया खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे खुदावंद टेस्टमनी के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं बहुत ही जबरदस्त खुदावंद हमारी जिंदगियों में काम करता है प्रेज गॉड हालेलुया खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ हो खुदा मैं वफा को खुदावंद सर से लेके पाँव के तलवे तक खुदावंद यीशु तेरे खून में छुपाती हूँ तेरी बंदी पे खुदाम तेरा हाथ जो है बड़ा रहे तेरा हाथ ठहरा रहे खुदाम तेरा गहरा मसा तेरी गहरी हजूरी तेरी बेटी के ऊपर ठहरी रहे यीशु के नाम से खुदाम तू आज अपनी बेटी को अपने नाम अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना खुदाम लफ्ज़ों की तरतीब देना खुदाम खुदा तेरा ताया हुआ कलाम खुदाम खुदा जो हमारी जिंदगियों में हथौड़े की तरह लगे खुदाम खुदा जो हमारी जिंदगियां तब्दील करने के लिए खुदाम खुदा जो हमें मजबूत करने के लिए जो हमें खुदावंद खुदा तुझ में और ज्यादा गहरा करने के लिए खुदावंद आज तो वो खुदावंद हमारे साथ कलाम करना अपनी बेटी के जरिए खुदावंद हमारे बंधन टूट जाएं हमारे जुए खुल जाएं यीशु के नाम से खुदावंद अब आप खुदावंद अपनी बेटी को खुदावंद तू ले और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहा है खुदावंद जहाँ जहाँ तेरी बेटी जाए खुदावंद इसकी जिंदगी से तेरे नाम को जलाल मिले खुदावंद खुदा जहाँ जहाँ हम सब बैठे हैं मैं सबके चौगिर्द खुदावंद तेरे पाक तेरे निगहबान फरिश्ते तेरे जंगजू तेरे सुरमा फरिश्तों को मांगती हूँ यीशु के नाम से खुदावंद खुदा अबलीस की बदी की सारी कुव्वतों को जो इस मीटिंग के खिलाफ हैं जो इस प्रेयर के खिलाफ हैं जो इस मैसेज के खिलाफ हैं यीशु के नाम से खुदा उन सारी बदी की कुव्वतों को दुश्मन की फौजों को पीछे हटने का हुक्म देती हूँ यीशु के नाम से खुदा अबलीस का कोई भी वार इस मीटिंग पे हमारे ग्रुप पे चलने ना पाए यीशु के नाम से जहाँ जहाँ हम बैठे हैं सबके घरों को खुदा यीशु तेरे खून में छुपा देती हूँ खुदाम बाप खुदाम सबके घरों के चौगिर्द तेरे आछी रथों का पहरा लग जाए खुदाम खुदा तेरे फरिश्ते मुकर्रर कर देती हूँ खुदाम खुदा आज कलाम का जो बीज बोया जाए हमारे दिलों में वो 100 गुना फल लेके आए यीशु के नाम से खुदाम अपनी बेटी की खुदावंद अपने हाथ को बढ़ा खुदावंद तेरा गहरा बादल तेरी बेटी के ऊपर छाया रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं आमीन जी आज वफा हमारे साथ हमने जो शुरू किया था वारफेयर का हम थोड़ा सा सीख रहे हैं है ना तो वफा हमारे साथ थोड़ा सा शेयर करेगी जब हमने इस ग्रुप को शुरू किया था तो तब इसने हमारे साथ तब भी शेयर किया था तो मैंने इससे कहा कि आप फिर से हमारे साथ वॉरफेयर के बारे में जो भी उसकी स्टडी है या वो कुछ हमसे शेयर करना चाहती है वो हमारे साथ शेयर करें जी तो वफा हमारे साथ जी वफा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने आज दोबारा से जो है वो रूहानी जंग के बारे में बोलने का मुझे मौका दिया और यकीनन हमें इस पे बोलने से पहले ये कि हमारा पूरा इत्मीनान होना चाहिए खुदावंद पे और क्योंकि कलाम में लिखा है पहला सैमुएल उसकी 17 बाब उसकी 47 आयत में लिखा है और ये सारी कौम जान ले कि खुदावंद तलवार और भाले के जरिए से नहीं बचाता इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है और वही तुमको हमारे हाथ में करेगा आमीन यानी कि शरारत की उन तमाम रूहानी फौजों के लिए है ये कि खुदावंद जो है वो उनको हमारे हाथ में करेगा हमारा मतलब कोई इसमें अमल दखल नहीं है हमने जस्ट ये है कि खुदावंद से मांगना है दुआ करनी है और खुदावंद ने हमें इस तरह के हथियार दिए हैं
कि हमें कलाम मुकद्दस में खुदावन ने नए अहदनामे में, पुराने अहदनामे में खुदावन ने हमें वो हथियार बताए हैं कि हम किस तरह उसका मुकाबला कर सकते हैं बख्तरबंद पहन के पूरा। इसके बारे में अभी पिछले हफ्ते हमने सीखा है कि रूहानी हथियार हमारे कौन कौन से हैं। सच्चाई से कमर कस के, रासबाजी का बख्तर लगा के, सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर और सबके साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो। इस तरह तुम अबलीस के जलते हुए तीरों को जो है वो बुझा सकोगे। नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदावंद का कलाम है, ठीक है, जो दुश्मन के सर में लगेगा। ठीक है, खुदावंद का कलाम जो है और खुदावंद का नाम जो है वो दुश्मन के सर में इस तरह लगता है जैसे हथौड़ा, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मेरा कलाम जो है हथौड़े की मानिंद है जो कि चकनाचूर कर देता है। और खुदावंद का नाम जो है जब हम लेते हैं, हम यस्सु का नाम लेते हैं, हम खुदावंद का नाम लेते हैं, तो अबलीस क्या है उससे, इस नाम से जो है वो डरता है, भागता है, कांपता है और फना हो जाता है। हम दाऊद नबी से शुरू करेंगे क्योंकि वो खुदावंद का जंगजू सूरमा था, कि वो किस तरह खुदावंद के लिए जो था वो जंग करता था। वो एक चरवाहा था और अपनी भेड़ों की जो था वो अपने बाप की भेड़ों की वो कहता है कि वो हिफाजत करता था। जब वो जंगल में जाता था तो खुदावंद की हमदो सना के गीत गाता था और अपनी भेड़ों के आसपास रहता था और उन पे नजर रखता था। वो खुदावंद की खिदमत भी करता था, वो अपने बाप की खिदमत भी करता था। जिस तरह यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में आए वो अपने बाप के साथ भी काम करते थे, अपनी माँ के साथ भी करते थे और अपने आसमानी बाप की मर्जी को भी खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो पूरा करते थे। इसी तरह जब दाऊद उधर वहां पे था, अपने भाइयों में सबसे छोटा था और उसके भाई सारे फौज में थे और ये सिर्फ अपने बाप की जो था वो भेड़े चराता था। और उसके भाई जो थे बनी इसराइल की फौज में थे और वो आगे जाते थे, जंग के लिए जाते थे। तो ये वाक्य हमारे सामने है कि जब जाती जूलियत आके उनको ललकार रहा था और साउल जो था वो बादशाह था, तो उस बादशाह समेत जितनी भी इसराइल की फौज थी वो क्या कर रही थी, वो जाती जूलियत से जो थी वो डर रही थी। जब जंग के लिए काफी दिन हो गए, कोई खबर नहीं मिली, तो उसके बाप ने दाऊद को भेजा उधर और कहा कि जा अपने भाइयों का जो है वो पता कर और ये उनको खाना भी उनके लिए ले जा, रोटी भी ले जा और उसके और भी लोगों के लिए उसने खाना भेजा और भाइयों के, अपने बेटों के लिए भी भेजा। दाऊद जब गया तो वो खाना देने था, लेकिन उसने क्या देखा कि वहां पे एक जो है वो लश्कर से एक देव निकलता है और वो खुदावन के नाम की और इसराइली फौज की तहकीर करके जो है यस्सु के नाम, खुदावन के नाम की, तो वो चला जाता है और ये सब जो है वो डरते मारे जाते हैं। फिर उसके दिल में खुदावन के लिए गैरत उठती है, क्योंकि वो जो था वो एक जंगजू था, ममसूआ था खुदावन का। तब तक तो अभी खुदावन ने उसको जाहिर नहीं किया था सबके ऊपर, लेकिन ये वो वक्त आ चुका था जब खुदावन ने जो था दाऊद को सबके सामने एक जंगजू और एक बादशाह की सूरत में जो है वो उसकी इब्तदा होनी थी यहाँ से। तो उसने ये थी कि ये उसकी जिंदगी की पहली जंग तो नहीं थी, क्योंकि जब वो भेड़ बकरियां चराता था तो उसने वहां पे आके जब बादशाह के सामने, साउल बादशाह के सामने पेश किया गया, तो उसने बादशाह के सामने आके बताया कि क्या इसकी ताकत जो है मैं इससे लड़ूंगा। तो वो सब हैरान हो गए कि ये कैसे लड़ेगा। तो उसने बादशाह को कहा क्या इसमें शेर से ज्यादा ताकत है, मैंने शेर को भी चीर फाड़ दिया हुआ है। कहता है क्या इसमें रीछ से ज्यादा ताकत है, तो कहता है कि मैंने उसको भी, उसके भी 2 टुकड़े कर दिए हैं। तो वो कहता है कि मैं इससे लड़ूंगा। तो साउल जो है अपना बख्तरबंद, जो उसको दुनियावी बख्तरबंद था, उसको पहनाता है और कहता है कि अब तू जा। लेकिन वो उसको बहुत भारी मालूम होता है, वो उसको उतार देता है, दुनियावी बख्तरबंद को वो साइड पर रख देता है। लेकिन यहाँ पे भी हम देखेंगे कि वो उसको तो साइड पे रखता है, लेकिन रूहानी बख्तरबंद वो पहन लेता है कि ईमान की सिपर वो अपने साथ लगा लेता है। और ईमान जो था उसका इतना था कि मैं अपने रब का नाम ही लूंगा तो जो है मेरा खुदा जो है, जिंदा खुदा जो है, वो इस देव को जो है वो खत्म कर देगा। ठीक है, वो पूरे ईमान के साथ गया और उसने रास्ते में से एक पत्थर उठाया। और हमारे नए नामे भी, हमारे कलाम में लिखा है कि मसीह जो है वो कोने के सिरे का पत्थर है। ठीक है, और उसने भी दरिया के किनारे से एक पत्थर उठाया और जब वो लेकर जा रहा था, तो वो जब फिलिस्तीन ने उसको देखा तो उसने कहा कि क्या ये मेरा मुकाबला करने को आ रहा है। तो जब उसने
उसको देखा तो उसने समझा कि मैं तो इसको ऐसे ही कर दूंगा, मुझे बख्तरबंद की जरूरत नहीं है, क्योंकि इब्लीस की आदत है कि वो अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट है, इब्लीस भी, कि मैं इसको, मतलब वो अभी तक कॉन्फिडेंट है, इसलिए उसको पता है कि मेरा जो है हलाकत का वक्त है, लेकिन वो मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, वो आखिरी दम तक लड़ता है। तो यहाँ से भी हम सीखेंगे कि हम जो ईमानदार हैं हमें भी आखिरी दम तक लड़ना है, क्योंकि हमारा खुदा गालिब खुदा है, हमारा खुदावन जो है इस जंग पे उसने फतह पाई है। तो हमें भी जो है वो डरना नहीं है, हमें भी अपने खुदावन पे ईमान रखना है, उसके कलाम पे, कि ये जंग जीती हुई है। जिस तरह दाऊद ने ईमान रखा और वो आगे गया, फलिस्तीन ने अपने सर से जब वो उतार दिया तो दाऊद ने क्या किया, उसके सर का निशाना लिया और वो पत्थर जो था वो उसके सर पे लगा और वो गिर गया, और दाऊद ने चढ़कर जो था उसका सर कलम कर दिया, और सारी फलिस्ती फौज पे जो था वो खुदावंद का जो था रोब छा गया। और उसने क्या किया था, सिर्फ एक नाम लिया था कि तू तो भाला और भर्ची लिए मेरे पास आता है, लेकिन मैं अपने रब्बुल अफवाज का नाम लेकर, जो सारी अफवाजों का रब है, उसका नाम लेकर तेरे सामने आता हूँ। और उसने सिर्फ ये कह के पत्थर चलाया और वो पत्थर उसके सर में लगा और वो उसकी मौत का सबब बना, और दाऊद ने उसका जो है वो सर कलम किया। इसी तरह हमारे मसीह ने जो था वो अबलीस का जो है वो उस मंसूबे को पूरा किया, और अबलीस का जो है सर जो है सलीब पे जो कुचल दिया। जैसे दाऊद ने उस फिलिस्ती का सर कुचला, इसी तरह हमारे मसीह ने भी उसका जो है अबलीस का जो सर वो है कुचल दिया। और अब उसका कोई इख्तियार नहीं, उस वक्त उसके पास फिर भी इख्तियार था अबलीस के पास जब दाऊद ने किया, लेकिन दाऊद पूरे ईमान भरोसे के साथ सिर्फ खुदा का नाम लेकर गया और उसने उसको मार गिराया। ठीक है, लेकिन अब तो देखें कि ये जंग हम जीत चुके हैं। अब हम उस दौर में आ गए हैं कि जब हमारा खुदावन बहुत करीब हमें, अनकरीब हमें किसी भी वक्त लेके जा सकता है। ठीक है, तो अब जो है हमारी जंग जो है हमारे ईमान की जंग है। उस वक्त भी दाऊद के ईमान ने उसको वो जंग जो थी वो जितवाई थी। आज भी हमारी जो हमारा ईमान है वो जो है हमें ये जंग जो है वो जितवाएगा। आमीन। वैसे खुदा ने हमारी हमें जीती हुई जंग दी है, लेकिन हमने जो अपनी पर्सनल रूहानी जंग है वो अपने ईमान से ही हमने जीतनी है। हम हर किसी की जो हम अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं वो हमारे हालात से हो, किसी भी स्ट्रॉन्ग मैन से हो, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग मैन की भी स्टडी ली, और कोई भी बैड स्पिरिट है हमने सिर्फ उनको जो है हराना है, किससे? ईमान से। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ठीक है, और हमें इस चीज की बहुत बड़ी खुशी है कि यहाँ पे मैं अभी एक स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, तो मुझे 1 मिनट लगेगा। हमारा जो शुक्र है खुदावन का कि खुदावन ने हमारे लिए जो है वो एक जंगजू फरिश्ता जो है वो मुकर्रर किया है। और जंगजू फरिश्ता जो है वो कौन है? मिकाएल। हम यहाँ पे जो है ये पढ़ते हैं, माइकल द ग्रेट प्रिंस स्टैंड्स गार्ड ओवर दी सन्स ऑफ इसराइल। जो खुदामंद का फरिश्ता है, जो खुदामंद का खास फरिश्ता है, माइकल फरिश्ता, मिकाइल फरिश्ता, उसको खुदामंद ने इसराइल के बच्चों के ऊपर उस वक्त भी और आज हम जो रूहानी इसराइल हैं, खुदामंद ने हमारे ऊपर मखसूस किया हुआ है कि वो हमारी हिफाजत करे। साल में 365 दिन है और 365 बार कलाम मुकद्दस में आया तू खौफ ना कर, तू डर ना। ठीक है, और 300 बार जो है वो फरिश्तगान का जिक्र आया है। ठीक है, खुदावन को पता है कि जो मेरे बच्चे हैं वो डरते हैं। ठीक है, और डर जाएंगे, क्योंकि इब्लीस हालात हमारे इर्द गिर्द इस तरह के पैदा करता है कि हमें डर और खौफ दिलाता है। लेकिन डर और खौफ किस वजह से है? ये इब्लीस का सबसे पहला हथियार है कि शक डालता है और साथ ही हमारे दिल में डर डालता है। यानी कि हमें डर होता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो, मतलब खुदावंद हमारी मदद को ना आया। ये जो चीज है ये हमें अपने दिल से और दिमाग से निकालनी है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये जो डर है ये क्या है? रूहानी अंधापन है। अगर हमारी रूहानी आंखें खुली होंगी तो हम उन फौजों को देख सकते हैं जो खुदावन ने जो हमारे इर्द गिर्द जो लगाई हैं, आतिशी रथ जो खुदावन ने हमारे इर्द गिर्द लगाए हैं, उनको हम देख सकते हैं। इसका जिक्र जो है वो बाइबल मुकद्दस में मिलता है अलीशा नबी के उसमें। जब अलीशा खुदावन के लिए खुदावन के उसमें शाह इस्राइल को जो है वो बताता है कि
उसको हमेशा बता देता है शाह इसराइल को कि अब जो है वो तुम्हारे ऊपर यहाँ से अराम का जो अरामी लश्कर है वो यहाँ से चढ़ाई करेगा, वहां से चढ़ाई करेगा, ठीक है। तो वो जो था वो अरामी लश्कर का जो बादशाह था वो बहुत जो था वो, एक सेकंड जरा प्लीज, मैं आ रही हूँ। सॉरी। अरामी लश्कर का जो बादशाह था वो अपने साथियों से पूछता है कि ये किस तरह, मतलब हर बारी शाह इसराइल को पता लग जाता है कि मैंने इस तरफ से उस पे हमला करना है। तो उसने कहा कि उसके पास, शाह इसराइल के पास एक मर्दे खुदा है जिसका नाम अलीशा है। तो वो उसको कहता है कि वो उसको कैसे पता चलता है, कहता है वो मर्दे खुदा है इसलिए वो उसको बता देता है। तो वो कहता है कि उसको उठा लाओ। वो जब वो जाते हैं रामी लश्कर जो है वो उसको उठाने जाता है अलीशा के इर्द गिर्द। जो अलीशा का जो शागिर्द होता है वो घबरा जाता है उनको देख के। अलीशा उस वक्त दुआ कर रहा होता है अपनी छत पे जाके अपने घर में, और उसको जाके कहता है कि हमें तो फौजों ने चारों तरफ से घेर लिया है। तो अलीशा अपने शागिर्द के लिए खुदावन से दुआ करता है। वो उसको शागिर्द को कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वो अपने खुदावन से पूरे ईमान से भरोसे से बैठा रहता है। उसको नहीं डर और खौफ आता। जिस तरह जबूर नवीस भी कहता है कि चाहे जमीन उलट जाए, चाहे सैलाब आ जाए, चाहे समंदर शोर मचाए, लेकिन मेरा दिल नहीं घबराएगा। इसी तरह अलीशा का दिल नहीं घबराया कि उसको चारों तरफ से घेर लिया। उसने कहा कि ऐ खुदावन इसकी रूहानी आंखें खोल दे। तब उसकी रूहानी आंखें जब खुली तो उसने क्या देखा कि हम जो हैं वो आतशी उस ग्रोह ने, उस लश्कर ने जिसने हमें घेरा हुआ है, उस लश्कर को एक आतशी रथों के लश्कर ने जो कि लातादाद है उन्होंने घेरा हुआ है। तब उसका देखें, उसकी रूहानी आंखें खुली तो उसको नजर आया खुदावन का लश्कर। इसी तरह आज अगर हम अपनी ये रूहानी आंखें खोल लें तो हमें खुदावन का लश्कर नजर आएगा। तो फिर हमें जो है ये डर जो है ये हमारी जिंदगी में नहीं होगा। और जब हमारी जिंदगी में डर नहीं होगा तो अबलीस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अबलीस क्योंकि वो पहले ही हारा हुआ है। तो हम ये जो है वो जंग जो है वो हम तभी जीत जाएंगे जब हम अपनी जिंदगी से इस डर को निकाल देंगे। क्योंकि हमारे खुदावन ने बार बार कलाम में लिखा है, खौफ ना कर, डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यशवा को भी कहा कि डर ना, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ साथ हूँ। इसी तरह यही सारा कलाम आज भी खुदावंद के बंदों के लिए वैसे ही है जैसे उस वक्त उन अंबिया कराम के साथ था। आज भी जो खुदावंद के साथ वफादारी से, रासबाजी से, खुशदिली से चलते हैं, तो खुदावंद का कलाम आज भी उनके लिए ऐसे ही है। क्योंकि हम रूहानी इसराइल है और खुदावंद ने अपने फरिश्ता को, माइकल को, इसीलिए मुकर्रर किया है कि वो हमारी हिफाजत करे। अपने बच्चों की हिफाजत के लिए खुदावंद ने अपना जो जंगजू फरिश्ता है वो लगाया। और इस जंगजू फरिश्ते का बाइबल में 4 या 5 दफा जिक्र आया है। और मुकाशवा की आखिरी किताब में भी लिखा हुआ है। एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। माइकल फरिश्ते के बारे में कि उसने जो है वो अबलीस से अभी आके उसने दोबारा से जंग लड़नी है। और हम याद रखें एक बात, ये जो खुदावन के साथ जो चलना है, हमारी जो मसीही जिंदगी है, ये इतनी आसान नहीं है। ये बहुत मुश्किल है। ये मुसलसल जद्दोजहद का नाम है, मुसलसल आजमाइशों में से गुजरने का नाम है। और उसमें वो कहते हैं, पास्टर बिली ग्राहम कहते हैं कि मैंने अपनी ये जो जिंदगी गुजारी है, हम सोचते हैं कि पास्टर बिली ग्राहम जो हैं वो बहुत मतलब बड़े वो थे और वो खुदावन के साथ चलते थे और उन पे कभी कोई मुसीबत नहीं आई। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जो है और दुआ में जब गुजारी है वो मैंने आंसुओं के साथ गुजारी है, क्योंकि इतनी वो टफ जो थी उनकी जो थी वो जिंदगी थी। सेकंड नैनी भाजी, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही तो मैं वैसे ही कर दूं। हाँ वैसे ही कर दो, ठीक है।
वो मुझे मिल नहीं रही, मैंने जहाँ पे वो की थी। ओके चलो कोई बात नहीं, जो पुरानी वाली वही कर दो आगे, ताकि जो ओके पहले ठीक है, माइकल की। ठीक है, ओके। ये एक मैंने अभी शेयर किया कि अब जब हमसे कोई पूछे कि मतलब यहाँ पे ये एक बड़ी अच्छी ये मुझे मिल गई है, व्हेन समवन सेज यू एंड व्हाट आर्मी, तो ये देखें कि खुदावंद की आर्मी जो है वो हमारे इर्द गिर्द कैसे रहती है, कि कब कोई बच्चा खुदावंद का जो मुश्किल में आए। और इस कान में ज़बूर में लिखा है, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें, ताकि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस ना लगे। तो वो फरिश्ते हर वक्त हमारी हिफाजत के लिए रहते हैं। समटाइम्स हमारी सबकी जिंदगी में इस तरह की कोई ना कोई गवाही होगी कि जब हमने मौत को बहुत करीब से देखा होगा और हम परेशान होंगे कि हम किस तरह बच गए हैं। तो वो ये जो हमारी आर्मी हमारे इर्द गिर्द है, जो आतिशी रथ है, जो फरिश्तगान है, जो हर वक्त लड़ाई करते हैं हमारे लिए, वो हमें बचाते हैं। मैं अपनी एक छोटी सी मतलब टेस्टिमनी शेयर करूंगी कि हम अगर ये जो जितने भी लाहौर में रहते हैं, ये फाटक के करीब रहते हैं, हमें सबको पता होगा कि यहाँ पे कितना रश है। तो मैं और मेरे हस्बैंड बाइक पे जा रहे थे, तो एकदम से एक चिंची वाला सामने आ गया और उम्मीद की ब्रेक नहीं लगी, वो सीधे जाके उसमें लगे। और मुझे भी ये था कि मैंने एकदम से आंखें बंद कर ली कि हम एकदम से जाके चिंची में बचे। उम्मीद का जो टायर था बाइक का, वो जाके सामने चिंची में बजा और वो गिर गए। और मुझे नहीं समझ आई, मैंने उस वक्त तो आंखें बंद कर ली, लेकिन जब मैं आंखें खोली तो मैं काफी फासले पे पीछे ही खड़ी थी और मैं उतरी नहीं थी क्योंकि मैंने उन्हें पकड़ा था। और मैं एकदम से चल के गई हूँ और उनको लगा कि शायद मैं गिर गई हूँ, और मुझे भी नहीं पता लगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। और मैं जाके उनके पास पूछ रही हूँ, मैंने कहा आप ठीक हो, मैंने कहा ज्यादा चोट तो नहीं लगी। तो वो उन्होंने एकदम से मुझे पूछा, कह रहे तुम कब उतरी? कह रहे मैं तो समझा तुम गिर गई हो पीछे। मैंने कहा नहीं। कह रहे उतरी तुम कब हो? मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं कब उतरी हूँ। तो वो अब मैं सोचती हूँ कि वो खुदावंद के फरिश्तों ने मुझे पहले ही ये के उतार लिया था और मैं काफी फासले पे गिरी है जब, तब तो मैं उधर ही थी, मुझे नहीं पता उस 1-2 सेकंड में क्या हुआ है। लेकिन मेरा ईमान है कि खुदावंद के फरिश्तों ने ये कि मुझे पहले ही संभाल लिया, ना तो मैं गिरी बल्कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हुई थी। शुक्र है खुदावंद का। तो ये खुदावंद की आर्मी है जो हमें हर वक्त जो है वो संभाल के रखती है। और हम देखते हैं कि खुदावंद के जो थे वो उसमें अंबिया कराम थे, खुदावंद के जो सूरमा थे पुराने अहदनामे में, उन्होंने किस किस तरह जो थी वो जो थी ईमान में दुआ में जो थी वो की, और खुदावंद ने उनकी दुआओं का जो था वो जवाब दिया। एलिया नबी जो था वो हमेशा घुटने नशीन होकर दुआ करता था और खुदावंद ने उसकी दुआ का जो जवाब दिया। जब एलिया नबी ने दुआ की घुटने नशीन होके, तो 6 बार उसने अपने उसको भेजा कि जा देख उधर से बादल का वो उठा है, बादल उठे हैं कि नहीं। उसने कहा नहीं। 6 बार उसने जब भेजा तो बादल नहीं थे उठे। उसने फिर ऊंधे मुंह होके घुटनों के बल होके दुआ की, और क्या था, 7वीं बार जब गया तो उसने कहा हाँ मैं एक छोटी सी बदली देखता हूँ जो समंदर में। तो उसने कहा कि ठीक है दौड़ जा, क्योंकि बहुत तेज बारिश होने वाली है। तो खुदावंद ने उसकी दुआ सुनी कि उसने पहले दुआ की तो उधर काल पड़ गया, बारिश नहीं बरसी। लेकिन जब उसने दोबारा दुआ की तो जो थी वो जमीन पे बारिश बरसी। लेकिन एलिया ने किस तरह दुआ की थी? घुटनों के बल होके। अलीशा नबी ने भी जब दुआ की तो वो चूंकि एलिया नबी का शागिर्द था, और वो भी में लिखा तो नहीं है लेकिन मेरा ईमान है कि वो भी घुटने नशीन होके अपने उस्ताद को ही फॉलो करता होगा, कि वो भी उसी तरह दुआ करता था। दाऊद जो था वो हमदो सना के जरिए और खुदावंद को सजदा करके दुआ करता था। हमदो सना में बाज औकात हमारे हमदो सना में ही हमारे जो बंधन है, हमारे जो जुए हैं वो टूट जाते हैं। और हम प्रस्तिश में ही खुदावंद का इतना मसा होता है कि प्रस्तिश के दौरान हमारे जो बंधन है उस वो जो है अबलीस जो है वो भाग जाता है। याकूब ने जो थी वो कुश्ती लड़के जो थी वो बरकत ली थी, वो फरिश्ते से उसने कुश्ती ली, यानी कि उसने खुदावन से ही इतना उसने खुदावन का पीछा किया। मतलब कई दफा जब हमें कोई चीज हमारी होती है लेकिन नहीं मिल रही होती, तो वो हमें ये कि इतना उस चीज के पीछे लग जाना चाहिए कि हमें अपने दिलो दिमाग से खुदावन से मांगते रहना चाहिए जब तक कि खुदावन हमें वो दे होती वो हमारी है। लेकिन खुदावन ने एक पैटर्न हमें दिया कि याकूब की तरह हमें कुश्ती लड़के जो है अपनी बरकत जो है वो खुदावन से ले लेनी है, क्योंकि वो हमारा बाप है और वो हमें लाजमी देगा।
मूसा ने जब अमालेकियों से जंग की, उनकी जंग थी, तो क्या था, मूसा ने जब तक हाथ उठाए रखे तो उसकी कौम बनी इसराइल जीतती रही। जैसे ही वो हाथ नीचे करता था तो उसकी जो कौम थी वो हारने लग जाती थी। तो ये कि हमारी एक दुआ का पैटर्न ये भी होना चाहिए कि हमें पूरे दिल पूरी जान से, और समटाइम्स ये कि किसी भी तरह से हम मतलब इन जो कि खुदावंद के अंबिया कराम जिस तरह दुआ करते थे, खुदावंद के सूरमा जिस तरह दुआ करते थे, हम उस तरह दुआ करें तो खुदावंद आज भी हमारी सुनेगा। तो मूसा ने हाथ उठाए रखे और उसके 2 मददगार साथ आए, क्योंकि वो इतनी देर तक सारा दिन तक हाथ नहीं था उठाए रख सकता। तो उसके 2 मददगार आए साथ में, हारून और आई थिंक यशवा शायद, है ना ननी बाजी। तो वो उन दोनों ने मूसा के हाथ उठाए। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर सारा बोझ किसी एक पे ही जा रहा हो, मतलब कोई एक रूहानी जंग कर रहा है, तो उसके साथ जो दूसरे हैं उसके साथी, उनको आ जाना चाहिए। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो तिहरी डोरी है ना, वो नहीं खुलती। 2 जो है, 1 से 2 जो है वो लोग दुआ करें। खुदावंद ने कलाम में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से मिलकर दुआ करेंगे मैं उनके दरमियान हाजिर रहूंगा। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तिहरी डोरी जो है वो नहीं टूटती, जल्द नहीं टूटती। इसलिए वो वहां पे भी 3 लोग आ गए और वो जो बनी इसराइलियों ने शाम तक जो थी वो जंग जो है वो जीत ली थी। इसी तरह दानियल नबी ने जब दुआ की तो दानियल नबी की दुआ का जवाब तो आ गया, लेकिन उसने ईमान से वो करता रहा। उसने खुदावन से कोई शिकायत भी नहीं की कि खुदावन मैंने इस रोया को समझने के लिए दुआ की है, तो अभी तक मुझे इसका जवाब क्यों नहीं मिला। वो उसी तरह मुसलसल जो था वो अपनी रूटीन से दुआ करता रहा। उसने खुदावन से कोई शिकायत नहीं। समटाइम्स हमारी जब दुआ कबूल नहीं होती तो हम शिकायतें करने लग जाते हैं। तो जब शिकायतें करने लग जाते हैं तो वो इब्लीस को मौका मिल जाता है। तो वो फिर हमारी दुआ किसी ना किसी वजह से, जो हमारे ही मुंह से समटाइम्स कुछ ऐसे अल्फाज निकलते हैं कि वो हमारी दुआ या हमारी बरकत जो है हमारी वजह से रुक जाती है। लेकिन दानियल नबी ने क्या किया कि मुसलसल वो अपनी उसी दुआ के जो पैटर्न था उसको फॉलो करता रहा। 3 दफा खुदावंद के हुजूर हाजिर होता था, खुदावंद से दुआ करता था। तो 21वें रोज क्या थी कि वो जिब्राइल फरिश्ता जो था वो आसमान से नीचे आया और उसने कहा, एक सेकंड ये मैं यहां से निकालती हूँ। जी, डैनियल 8 बाब 9 बाब और 21 से 27 आयत में है कि वो जिब्राइल फरिश्ता आया और उसने कहा कि ए डैनियल, तेरी दुआ कब से मतलब सुन ली गई थी, लेकिन मुझे जो था वो आसमान और जमीन के दरमियान जो शरारत की रूहानी फौजें हैं, जो कि इब्लीस की रूहानी फौजें आसमान और जमीन के दरमियान, वो एक काली घटा की मानद है, एक तारीकी की वो फौजें हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है तारीकी की उन फौजों से हमें लड़ाई करनी है। वो जो एक काली घटा आसमान और वो अगर फरिश्तों को हमारे तक नहीं आने देती, फरिश्तों से लड़ सकती हैं, तो आप सोचेंगे हम क्या चीजें हैं। इसलिए हमें अपनी रूहानी जिंदगी है, अपनी रूहानी जो दुआ है, उसको हमें हमेशा जो है वो डेली बिला नागा ऐसे हमें करना चाहिए जिस तरह हम 3 वक्त का जो है वो खाना खाते हैं, ताकि हम उस फलिस्ती की तरह जो उसने अपना जो था वो सर से उतार लिया और वो जो पत्थर उसके था वो सर में लग गया। तो हमें इस तरह इब्लीस को मौका नहीं देना कि कोई भी हम अपना जो बख्तरबंद है उसमें से कोई भी चीज जो है वो एक हम उतार लें। मतलब समटाइम्स हम ये अगर बख्तरबंद पूरा नहीं पहनते जो खुदावंद ने हमें दिया है, रूहानी हथियार अपने नहीं पहनते, तो एक भी रूहानी हथियार हम अपना मिस करते हैं उसमें से, तो इब्लीस हम पे वहां से हमलावर हो सकता है। लेकिन हमने उसको हमलावर नहीं होने देना। हमने अपनी जिंदगी में झूठ नहीं लाना, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है जब हम ये रूहानी जंग में आ गए हैं तो हमें ये पूरा बख्तरबंद पहनना है, अदरवाइज इब्लीस पे हम पे हमला कर सकता है। और फिर जो है वो मैं सुन रही थी जॉन रैमजी का, तो वो कहता है कि जो इब्लीस है वो एक सच्चे परस्तार से डरता है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर से डरता है, लेकिन जो एक आम क्रिश्चियन है, आम मसीही है, वो उससे नहीं डरता, क्योंकि उसको पता है कि इसकी भी कोई इतना नहीं है, क्योंकि आधे काम तो ये मेरे कर रहा है। और खुदावन जो है वो 50-50 का मतलब खुदा नहीं है। खुदावन जो है वो कहता है कि ना तू नीम गर्म हो, तू नीम गर्म ना हो, या तू सर्द हो जा या तू गर्म हो जा,
अगर तू नीम गर्म होगा तो मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। या तो हम खुदावंद के हो जाएं या तो हम दुनियावी हो जाएं। अगर हमने जंग करनी या वॉरफेयर करनी है तो फिर हमें जो है हमें खुदावंद को ही अपनाना है, दुआ करनी है रोज बरोज। अगर हमें कोई कमी कमजोरी भी है तो हमें दुआ करनी है कि खुदावंद इस कमी कमजोरी को हम में से दूर कर दे। और जब हमने जंग में जाना है तो हमने पूरी तैयारी के साथ जाना है। हमने एक भी हथियार जो है उसको छोड़ के नहीं जाना। समटाइम्स मैं अपनी भी जिक्र कर रही हूँ कि जरूरत नहीं होती, लेकिन हम ऐसे ही मतलब मुंह से निकल जाता है, कोई बात होती है तो हम झूठ बोल देते हैं, लेकिन ये झूठ हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। हम रूहानी जंग नहीं कर सकते अगर हमारी जिंदगी में झूठ है तो, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो अबलीस है वो झूठों का बाप है। तो हम फिर अपनी जिंदगी में झूठ का सहारा लेते हैं, मतलब झूठों के बाप का सहारा लेते हैं। तो अगर हम झूठों के बाप का सहारा तो इसी तरह लिया जाता है ना कि उसको पास बुला के हम उसके ऊपर हाथ रख देते हैं और उसका सहारा लेके चलते हैं। तो अगर हमारी जिंदगी में झूठ है तो हम कभी भी रूहानी जंग जो है वो नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर हम में से इस तरह की कोई भी कमी है अगर हमारी तो खुदावन जो है वो फिर हमारी तरफ से जंग नहीं करता, क्योंकि फिर हम मुकम्मल नहीं होते। तो और खुदावन के फरिश्ते हमारी तरफ से जंग नहीं करते, फिर वो हम अपनी जंग आप लड़ रहे होते हैं। कोई भी अगर हम में खामी है तो फिर जो अबलीस जो है, अबलीस वो जानता है, हर चीज को अबलीस जानता है। रसूलों के अमाल उसके 16 बाब और उसकी 16 आयत में मतलब एक वाक्य है, और एक 19 बाब और 15 आयत में वाक्य है। रसूलों के माल के ही ये दोनों हवाले हैं, 16 बाप और 16 आयत और 19 बाप और 15 आयत। कि वो एक गैब की रूह एक होती है, तो वो साउल उसमें से निकालता है, पलूस उसमें से निकालता है उसको, बुरी रूह को। क्यों वो जब भी उधर से गुजरता है तो वो बुरी रूह जो उसमें गैब की रूह होती है वो कहती है कि ये खुदावन के मानने वाले हैं, तो वो उसको डांट के उसको निकाल देते हैं। यानी कि बुरी रूहों को ये पता है कि ये खुदावन का बंदा है, ठीक है। और उससे जो अगला हवाला है उसमें हम देखते हैं 19 बाब 15 आयत में हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि हम पलूस को भी जानते हैं और हम खुदा को भी जानते हैं कि जिसके नाम से वो निकालते हैं, पर तुम कौन हो। कुछ लोग जो थे एक ग्रोह, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें पलूस के खुदावन के नाम से, मसीह के नाम से हम तुम्हें निकालते हैं, लेकिन वो उनमें से नहीं निकली। यस्सु नाम में ताकत है, यस्सु नाम में कुव्वत है, यस्सु नाम हथौड़े की माने अबलीस के सिर पे लगता है, लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि मार कौन रहा है। अबलीस ये देखता है कि ये मार कौन रहा है, क्या इसकी जिंदगी में मसीह है, इसने मसीह को कबूल किया है उसी तरह जिस तरह मसीह चाहता है, तो फिर अबलीस हमसे नहीं डरता। अगर हम बिल्कुल मसीह के हैं तो अबलीस, यहाँ पे देखें कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि बुरी रूहें जो है और शैतान जो है वो जानता है कि ये मसीह की तरफ से और ये मसीह की तरफ से नहीं है। तो हम जो है ना तो अबलीस के साथ हम धोखा कर सकते हैं, ना हम खुदा के साथ धोखा कर सकते हैं, क्योंकि जो लूसीफर है वो भी पहले फरिश्ता था और वो आसमान पे ही उसने बगावत की थी और वहां से वो गिराया गया था। तो इसलिए हमें जो है वो खुदावन के साथ रह के, पवस्ता रह के हमें खुदावन के साथ फिर ही हम इस रूहानी जंग को लड़ सकते हैं। अगर हम खुदावन के साथ पूरे तौर से नहीं है तो हम इस जंग से जो है वो उस वक्त तक पीछे रहें जब तक हमें जो है खुदावन मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं कर देता। जैसे कि दाऊद को खुदावन ने एक वक्त आया कि पहले खुदावन ने उसको एक चरवाहे के तौर पे तैयार किया कि उसने वहां पे पहले रीछ का मुकाबला किया, शेर का मुकाबला किया, उसके बाद खुदावन ने उसको जो था जाती जूलियत के साथ तीसरे नंबर पे उसका मुकाबला हुआ। तो इसी तरह जब तक हम रूहानी जंग के लिए तैयार नहीं है, हम अपने लिए दुआ करते रहें ताकि ये कि हम अबलीस के हाथों जो है हम रुस्वा ना हो, ताकि जब हमें खुदावन जो है मुकम्मल कर दे, तैयार कर दे, हम रूहानी जंग करें तो हम भी पुलूस और सलास की तरह और मसीह की तरह एक लफ्ज बोलें तो वो बदरूहें निकलें, एक लफ्ज बोलें तो मुर्दे जिंदा हो जाएं, एक लफ्ज बोलें हम लोग तो खुदावन के कलाम जो है वो असर करे। क्योंकि इस चीज में जो है खुदावन के कलाम में, खुदावन के नाम में, तो सब नामों से आला है, इसमें कुव्वत है। और सबसे बढ़ के हमें जो है अपने इर्द गिर्द जो है वो हमारे इर्द गिर्द आतशी रथों की बाढ़ तो है, खुदावन के फरिश्तगान भी हर वक्त हैं, लेकिन मसीह में हमें शामिल किस तरह होना है कि हमें बपतिस्मा लेना है। अगर हमने बपतिस्मा नहीं लिया तो फिर हम इस तरह है कि जिस तरह हम मसीह के अंदर शामिल नहीं हुए। मतलब एक पास्टर थे, मैंने सुना, वो बैप्टिज्म पे जब स्टडी दे रहे थे
तो वो कहते हैं कि वो आपका इस तरह का रिश्ता है कि जब एक लड़के लड़की की आपस में जस्ट फ्रेंडशिप होती है, ठीक है, पता नहीं होता मंगनी होनी है या शादी होनी है, ठीक है, लेकिन जब आप मसीह को कबूल कर लेते हैं, ईमान ले आते हैं, तो समझे कि आपकी मंगनी हो गई है। जिस दिन आप बपतिस्मा ले लेते हैं तो समझे कि अब आपकी शादी हो गई है। तो फिर आप उस बंधन में बंध जाते हैं, फिर आप स्ट्रांग हो जाते हैं, शादी का बंधन जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो फिर हम मसीह की दुल्हन बन जाते हैं और अपनी दुल्हन को लेने के लिए उसने आना, और फिर अपनी दुल्हन को जो है वो खुदावन जो मसीह जो है वो कुछ होने नहीं देता। तो इसलिए बपतिस्मा लिए बगैर जो है हमारी जो है वो निजात नहीं है, और हम इस जंग को बपतिस्मा लिए बगैर भी रूहानी जंग को हम नहीं लड़ सकते, हम उस जंग का हिस्सा नहीं बन सकते। तो इन सब बातों को साथ हमें जो है खुदावंद का लहू जो है वो हर वक्त अपनी प्रोटेक्शन, अपनी शील्ड जो अपने इर्द गिर्द लगा के रखनी है। उन लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो अभी जंग करना नहीं जानते, वो सिर्फ खुदावंद से अपनी पनाह मांगे और जो यस्सु के लहू को लगाएं, उस तरह जिस तरह बनी इसराइलियों ने लगाए। वो सब जंगजू नहीं थे, उनकी जंग कौन लड़ता था? मूसा लड़ता था। तो जैसे जैसे मूसा उनको कहता था वो वैसे वैसे करते थे। जो हम अभी अपनी रूहानी जंग के लिए तैयार नहीं है, वो सिर्फ यस्सु का लहू जो है वो डेली जो है वो लगाएं, और कलाम को जरूर सुने, क्योंकि कलाम जो है वो सुनना मसीह के कलाम से जो है वो ईमान जो है सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। तो हम अभी जो है वो कलाम को सीखते जाएं, दिन ब दिन खुदावंद का कलाम जो है हमारे अंदर ईमान की जो मजबूती को पैदा करेगा। और जब ये राई का दाना जब एक तनावा दरख्त बन जाएगा, तो फिर हमारे अंदर इतना ईमान हो जाएगा कि हम अगर खुदावंद कहते हैं, मसीह कहता है कि अगर तुम इस पहाड़ से भी कहोगे कि जाके समंदर में लग जा, तो वो समंदर में लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें अपने लिए दुआ करनी है कि खुदावंद हमें जो है वो रूहानी जंग के लिए तैयार करें, ताकि हम भी खुदावंद की इस जंग में जो है वो शामिल हो सकें, खुदावंद के सूरमा बन सकें। और खुदावंद अपने लोगों के लिए, जो हमारे बहन भाई अभी मतलब इस तरफ नहीं आए, हमारी फैमिलीज में जो हमारे कुछ लोग रहते हैं, उनको भी हम खींच लाएं, क्योंकि आग में कूदना पड़ता है दूसरों को बचाने के लिए। तो हम इस आग में तब तक नहीं कूद सकते जब तक हमें खुद से पता है कि हम भी अगर ये कि हम कूदें तो हम भी ना जल जाएं। ये ना हो कि हम भी जलें उनको भी जला दें, लेकिन हमने वो बनना है कि आग में हमने जाना है, सिदरक मिसक अब्दुन्नजू की जगह, और खुदावंद के साथ हमने बाहर आना है, और हमारा एक बाल भी जो है वो बाका नहीं होना चाहिए अगर हम मसीह के साथ हैं, क्योंकि मसीह फिर हमारे साथ हर जगह आ जाता है। वो अपने लोगों को कभी भी जो है वो शर्मिंदा जो है वो नहीं होने देता। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन हमें खुदावंद ने बरकत दी होगी इस कलाम से। तो अब मैं ननी बाजी को आगे देती हूँ। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जी वफा, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत ही खूबसूरत कलाम, और खुदावंद ने जो हमें दिलेरी दी है, हमें नया जोर, नई ताकत दी है कलाम के जरिए, हम उसके लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। और हम लास्ट प्रेयर करेंगे सराफीन के साथ मिलकर। जी सराफीन हमारे साथ हैं। सराफीन जी, हम सराफीन हमें बीच में मेरा ज्वाइन कर लेंगी। हम शुरू करते हैं। करने लगे, बस 2 मिनट दो। जी, तब तक हम सारे जो मिल के हैं, हम पाकरूप उसमें गैर ज़ुबानों में प्रेयर करेंगे। आप ज़रूर सब जिनको खुदा ने पाकरूप का बपतिस्मा दिया हुआ है, वो गैर ज़ुबानों में दुआ करें, और सराफीन हमें लीड करेगी। ये सारे अपने ज़रूर अपने माइक जो है अनम्यूट कर लें। जिस तरह अभी हमने खुदावंद पापा के ज़रिए हमसे बात कर रहा था कि जब जंग के लिए निकलते हैं तो ज़रूर सब इकट्ठे मिल के दुआ किया करें, क्योंकि ये रूहानी जंग कर रहे होते हैं हम उस वक्त, है ना। तो जब मिल के करते हैं तो हमें पता जो है मिलती है, क्योंकि ये पूरा ग्रुप है, हम किसी एक उसके लिए नहीं कर रहे। तो ज़रूर अपने माइक जो है अनम्यूट करें। तो सब मिल के दुआ करते हैं, फिर हमें सराफीन लीड करेगी।
जी, हालेलुया रे शेक्रिया कात्रिया हालेलुया रे शेक्रिया कात्रिया रबा रबा सिया रबा शेक्रिया ओ रे शेरे बेरे 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 आगे तो सिस्टर जी बोलो। बर 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 जो तूने हमें बख्शा खुदा कि तेरी हज़ूरी तुझे सजदा नहीं तुझे बोल पारी तेरी तारीफ कर सके तुझे तो तारीफ के लायक है तुझे रहम के लिए तेरे नाम से हम पूरे पर रहम करता है जो हमारी जुबानों को खोलता है तेरा शुक्र कर इस जिंदा को खुदा आज तूने हम पर रहम किया खुदा आज तूने हमारी जुबानों को खोला तूने आज हमारी जुबानों को खोला तेरे हालेलुया हालेलुया शुक्र करके खुदा कि तूने हमें इस काबिल बनाया तेरे खुदा ताकि हम तेरी तारीफ कर सकें हालेलुया तेरी दी हुई नेमतों के लिए तेरी बरकतों के लिए तेरी शफ़क़तों के लिए तेरे जिंदा खुदा खुदा की तरफ शुक्र कर सके है मेरे खुदा मैं तेरी तारीफ करती हूँ तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदा कि तूने आज हमारी जानों को खुदा अपने खून से बचाया है तेरे जिंदा खुदा तेरी तरह शुक्र करती हूँ तेरे खुदा तू मेरी जुबान को खोल खुदा तू मेरे दिल को पाक साफ कर मेरे खुदा तू जो जुबानों को खोलता है खुदा तू जो अपने पाक लहू से हमारी जिंदगियों को धोता है तेरे खुदा तेरे पाक लहू ऐ जिंदा कुदूस खुदा की तेरा पाक लहू खुदा जी हमारी जिंदगियों को जिंदगियों को बचाता है खुदा कुदूस खुदा जी तू एक एक जान को छू खुदा ऐ मेरे खुदा एक एक तेरी बरकत को मांगती हूँ एक एक तेरे पाक लहू को मांगती हूँ तेरे पाक लहू की मोहर एक एक जिंदगी पर लग जाए तेरे खुदा तू मुझे छू करे खुदा तू मुझे छू करे जिंदा हालेलुया हालेलुया जिंदा खुदा जी तू मुझे मेरे से पाक छू खुदा तेरे जिंदा खुदा जी तेरे पाक का साया खुदा एक एक जिंदगी पर ग्रुप के एक एक मेंबर पर एक एक बेटी पर है खुदा जिसको तूने बरकत दी है तेरे खुदा तेरे एक एक बेटी खुदा तू नई जिंदगी दे खुदा नई रूह दे खुदा ताकि हर एक खुदावन के लिए खुदावन यीशु खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावन तू हमारे दरमियान है यीशु खुदावन तेरे शुक्र करते हैं खुदावन तेरे पास घेरे हुए हैं खुदा तेरा शुक्र करती हूँ तेरे पास की आग हर हमारे एक बात के लिए ऐ खुदा रहमत के शुक्र करती हूँ दाद के लिए तेरा शुक्र करती हूँ हालेलुया हालेलुया खुदा खुदा मैं तेरा है शुक्र खुदा करती आज हूँ के तो अच्छे नई मैसेज जिंदगी के लिए उस नई रूह के लिए खुदा जो खुदा आज प्रस्तुत के लिए शुक्रगुजार है खुदा अपने ग्रुप के खुदा तेरी सुंदर शुक्रगुजार हूँ कदमों में खुदा लाती हूँ और उस यहोवा बरकत के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावन हमारा खुदा जो झुकना आज तुझे हमें अता की पसंद आए है तेरे जिंदा यीशु खुदा जी खुदावन यीशु जी तो पूरे खुदावन दिन के हमारा लिए तेरे झुकना तुझे शुक्रगुजार हो खुदा कि पसंद आए पूरा दिन तूने हमारी खुदावन हिफाजत हमारा करने के झुकना बाद तेरे हमें हजूर बरकत है दी है खुदावन खुदा हमें बापू संभाले रखा तेरे खुदा आज की रात तूने हमें अता की तेरे खुदा तेरा खुदावन शुक्र यीशु करते हैं खुदावन हम खुदा तेरे जिस तरह कदमों तूने में आ सारा दिन जाते हमें हैं संभाले रखा खुदा ऐ तेरे आगे खुदावन मिन्नत हम करते तुझे इंतजार रखते करते हैं खुदा खुदावन हम तो आज सारी ऐ रात खुदावन हमें कहते हैं कि हम बना कितनी में रखना गलती हमारी बता सोचे दी है हमारे खुदावन ख्यालात जो खुदा हमने आज कहा तेरे हाथों ना में हो किया हमारे ऐ ख्यालात खुदावन खुदा तेरे तेरे से ख्यालात माफ कर बन जाए माफ हमारी कर सोचे तेरी सोचे बन इसलिए जाए खुदा आज की रात तेरा पाक करना रूह हमें सिखा छुए ताकि हम यीशु सुबह उठे ऐ तो हमारी खुदावन जिंदगी यीशु तेरे जी हम यीशु तो नाम से बदल कमजोर जाए है तेरे ऐ खुदा खुदावन हमारी यीशु रूह जी है खुदा तू हमारी बड़ा सांसें बड़ा तरबियत याफ्ता है कर खुदावन तू ही तेरे हमारा खुदा की ऐ खुदावन से ऊपर किला है दुआ खुदावन तू हमारी चट्टान है यहोवा जली खुदा तेरा हाथ इतना छोटा पर नहीं कि बेरे 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 खुदावन तेरे परे का खून मांगते हैं खुदावन जो अजल से दबा भरा है ऐ खुदावन उसका खून ऐ खुदावन एक एक जानवर पर ऐ खुदावन यीशु जी तक ऐ खुदावन सब पर खुदावन तेरे ऐ खुदावन आज रज को तेरे पाक खून को मांगते हैं खुदावन नस बच्चों को पर बरकत रूह देना पर ऐ खुदा खुदावन उनको तेरे नई पाक जिंदगी अता कर नई रूह अता कर खुदावन उनकी यीशु जी जुबानों को हमारे ऐ खुदावन ग्रुप को ऐ खुदावन जैसे उसका नाम है प्यारी बरादरी कानों को छू ताकि तेरा जैसे मजाक हाँ हम चल चलना सीखा यहोवा जी ऐ खुदावन हम अपनी फैमिलियों के लिए रचना में खड़े हो जाएं यहोवा जी ऐ खुदावन ऐ खुदावन तू हमारे महकम किला है तेरा शुक्र ऐ हो खुदावन यीशु जी ऐ खुदावन आज यीशु हमारी मदद कर ऐ खुदावन यीशु तू हमारा ऐ खुदावन उनको बढ़ कर दे उनकी जुबान खुदावन को तू खोल हमारा खुदा के रहनुमा है खुदावन यीशु जी ऐ अपने खुदावन बंद यीशु दरवाजों को खोल अपनी बेटी प्रभुता के के लिए शुक्रगुजार है
ऐ खुदावन तेरी बच्ची के लिए, ऐ खुदावन खुदावन तेरे आती रच को मांगते हैं, तेरे प्रीशियस ब्लड को मांगते हैं, उसके घर पर, दरवाजों पर, खिड़कियों पर ऐ खुदावन यीशु की बरका खून मांगते हैं, ऐ खुदावन उसका भरोसा तवक्कुल यकीन तेरे पर है खुदावन, तू हमें उठा खड़ा करता है, ऐ खुदावन जिनका तवक्कुल तेरे पर है खुदावन वो झोलते नहीं, ना शर्माते हैं, घबराते हैं, बल्कि उनकी निगाह उसका अमल यीशु पर है, खाली है और जिसकी कब्र खाली है। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐ खुदावन बरे की कुदरत मांगते हैं, खुदावन जी खाली कब्र की कुदरत मांगते हैं, ऐ खुदावन ऐ खुदावन यीशु और ऐ खुदावन हस्बैंड के लिए, ऐ खुदावन यीशु उनको ब्लेस कर, ऐ खुदावन वादे का फरजंद दे, यहोवा तेरे वादे का फरजंद दे, ऐ खुदावन सारी कमियों पे तू कादिर खुदा है, यहोवा तेरे कदमों में झुक जाती हूँ, ऐ खुदावन यीशु जी, ऐसे तू बहुत सारा को है खुदावन, पर मैं भी है खुदावन नमाज जैसी नेमत दे सकता तू है खुदावन, तूने दे खुदावन, इसका भरोसा तेरे पर ही है। जिंदगी से कैंसिल करती हूँ, कैंसिल करती हूँ, बंदिशें हैं खुदावन नाम से जाते उनकी जिंदगी में तेरा अमल, तेरा ऐ खुदावन सुकून, इत्मीनान, तसल्ली, सब्र, बर्दाश्त है रूहानी फलों से भरते हैं खुदा। आमीन। हम तो ऐसा ही करना। यीशु जी तू रहम से भरा है, तू दर्द से भरा खुदावंद, हम सब मुत्तफिक होकर तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावंद, करो तेरा पसंद दे यहोवा यानी खुदावंद तेरे नाम को ही जलाल दे खुदावंद, तूने उनके लिए रब छोड़ी है खुदावंद, तू देने वाला खुदा है खुदावंद, वो बरकत उन्हें दे यस लॉर्ड। खुदावंद यीशु जी फिर से मिन्नत करते हैं इसी तरह है खुदावंद, हाजी के लिए है खुदावंद, उनको है खुदावंद आपके सुंदर कदमों में लाते हैं खुदावंद, सर से लेकर पांव के तलवे तक तेरे पाक लहू में छुपाते हैं खुदावंद यीशु जी, तेरी बंदी है खुदावंद यीशु जी, है खुदावंद और अपने नाम और अपने जलाल के लिए बड़ा यहोवा जो तूने उन्हें रूहें दी है ऐ खुदावंद, जो हम एक ग्रुप में है खुदावंद सारे मिलकर है खुदावंद तेरे कदमों में हाजिर होते हैं ऐ खुदावंद, हम सब पर है खुदावंद यीशु जी, ऐ खुदावंद तू रूहानी नेमतों से और रूहानी फलों से भरते हैं खुदावंद, आमीन तो गीत है खुदावंद तेरी आरती रच मांगती हूँ ऐ खुदावंद, बरे के खून को मांगती हूँ ऐ खुदावंद यीशु जी, हमारे बच्चों में ऐ खुदावंद, हमारे में ऐ खुदावंद नाम को ही जलाल मिले यीशु जी, हमारी सोचों से, हमारे ख्यालों से, हमारी बातों से खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले। हम जब बोले तो है खुदावंद लोग जाने कि ये मसीह है खुदावंद यीशु जी, भाई जावेद के लिए, बादशाह के लिए शुक्रगुजार है, अच्छे रहनुमाओं के लिए है खुदावंद, जो है खुदावंद हमारी जिंदगी में है खुदावंद यीशु जी तूने दिए हैं ऐ खुदावंद, हम इनके साथ जुड़े तो है खुदावंद तूने तेरे ही फजल से ऐ खुदावंद यीशु जी, खुदावंद तो तंदुरुस्ती है खुदावंद, सारी बीमारियों से महफूज रखना ऐ खुदावंद, इनकी हिकमत को भी ऐ खुदावंद बुरी नजरों से, बुरे लोगों से, बुरी सोचों से, बुरे ख्यालों से महफूज रखना यीशु जी, खुदावंद यीशु जी, इनके बच्चों के जो गीत भी तेरे आती रचों को मांगती हूँ ऐ खुदावंद, उनके जो गीत भी है खुदावंद, कोई भी है खुदावंद इब्लीस की ताकत कोई भी काम ना करने पाए, बल्कि है खुदावंद तेरा पाक रूह, तेरा पाक लहू उनकी हर तरह से प्रोटेक्शन करे
ऐ खुदावन जब वो स्कूल जाए, कॉलेज जाए, काम पे जाए, ऐ खुदावन यीशु जी तू उनके साथ साथ रहना। ऐ खुदावन यीशु जी भाई के लिए दुआ करते हैं, भाई जावेद के लिए, जैसे उनकी खिदमत है ऐ खुदावन आउटडोर, ऐ खुदावन बाहर जाकर, ऐ खुदावन तेरा बंदा तेरी खिदमत करता है, ऐ खुदावन तेरे नाम का प्रचार करता है, ऐ खुदावन उनको बुरी नजरों से, बुरे लोगों से, बुरी सोचों से, बुरे ख्यालों से, बैड स्पिरिट से बचा के रखना यहोवा जरी। ऐ खुदावन तेरे पाक रूह का मस्सा, ऐ खुदावन तेरा ताया हुआ, ऐ खुदावन का कलाम उनकी जिंदगी में ही रहे, और ऐ खुदावन उनके वसीला से बहुत से लोग बचे। ऐ खुदावन यीशु जी बहुत से लोग तेरे कदमों में झुके। ऐ खुदावन अपनी बाजी के लिए इसी तरह है खुदावन उनके लिए ऐसा ही मसा चाहते हैं खुदावन, उनके वसीला से भी बहुत से लोग है खुदावन तेरे कदमों में आए। ऐ खुदावन तुझे धन्यवाद कहे, तुझे मुबारक कहे, तुझे को सजदा करें, क्योंकि तू ही हमारा जिंदा खुदा है। ऐ खुदावन जिंदगी तेरे पास है यीशु जी। ऐ खुदावन यीशु जी हम खुद से ना कहें कि हम मसीही हैं, हमारे किरदार से लोग जाने के है खुदावन यीशु जी हम तेरे बच्चे हैं। ऐ खुदावन यीशु जी उनके घर के जो गीत है खुदावन तेरे आरती रज को मांगती हूँ, ऐ खुदावन तेरे पाक लहू को मांगती हूँ, ऐ खुदावन उनके खाने पीने पर, रुपए पैसे पर, गाड़ियों पर, हर एक चीज पर ऐ खुदावन तेरे ऐ खुदावन पाक लहू को मांगती हूँ। ऐ खुदावन बन बन पर, गुदे गुदे पर तेरे पाक लहू को मांगती हूँ। ऐ खुदावन इसी तरह रिचल के लिए दुआ करती हूँ, यशवा के लिए ऐ खुदावन यीशु जी। ऐ खुदावन ये बच्चे तूने ही हमें दिए हैं, ऐ खुदावन उनको तेरे हाथों में दे देते हैं। ऐ खुदावन यीशु जी तू इन्हें ब्लेस कर, ऐ खुदावन ब्लेस कर, ऐ खुदावन सारी कमियां कमजोरियां यीशु के नाम से जाती रहे। ऐ खुदावन तेरा पाक लहू उनकी जिंदगियों में काम करे। ऐ खुदावन उनकी सोचों को ऐ खुदावन मुत्तफिक कर दे, उनके ख्यालों को, उनकी बातों को, ऐ खुदावन उनके ईमान को, ऐ खुदावन यीशु जी। ऐ खुदावन उनको जोरावर बना यीशु जी। ऐ खुदावन तू बना। ऐ खुदावन यीशु जी तुझसे मिन्नत करती हूँ, ऐ खुदावन रिचल के लिए ऐ खुदावन मुझसे वादे का फर्जंद दे यहोवा जी। ऐ खुदावन हम सब मिलकर ऐ खुदावन मुझसे ब्लेस की, ऐ खुदावन तुझसे ब्लेस कर, ऐ खुदावन यीशु जी तू ब्लेस कर, ऐ खुदावन यीशु, ऐ खुदावन तू ब्लेस कर, ऐ खुदावन हमारी खुदावन ग्रुप के एक एक मेंबर पर है खुदावन, अपने ग्रुप के सारे सरबराहों पर है खुदावन तुझसे मिन्नत करती हूँ, उन पर है खुदावन बरे का खून मांगती हूँ। ऐ खुदावन जो बाप है उन पर है खुदावन, ऐ खुदावन बरे का खून मांगती हूँ। ऐ खुदावन उन्हें हिकमत और दनाई दे, अक्ल दे, और ऐ खुदावन ताकि वो अपने घर को अच्छे तरीके से चला सके। ऐ खुदावन हमारे घरों में कोई भी है खुदावन बैड स्पिरिट्स काम ना करे, बल्कि तेरा पाक रूह ही हमारी जिंदगियों में काम करे। यीशु जी तू हमें ऐसा बना कि ऐ खुदावन हम अपनी जंग लड़ने वाले बन सके। ऐ खुदावन जो भी हम में कमियां हैं यीशु के नाम से जाती रहे, हम डरने वाले ना बने। ऐ खुदावन हमें जंगजू बनना है। ऐ खुदावन यीशु जी, ऐ खुदावन हम तेरे कदमों में हर वक्त हर घड़ी झुके रहे हैं खुदावन यीशु जी। खुदावन तू ही हमारी कुंभक है, तू ही हमारी स्किपर है, तू ही हमारी ताकत है। यीशु जी तुझसे मिन्नत करती हूँ सिस्टर सोनिया जी के लिए, ऐ खुदावन उनको आपके सुंदर कदमों में लाती हूँ। ऐ खुदावन भाई प्रिंस को, ऐ खुदावन जो तेरे बंदा है, तेरे मंसूर है खुदावन, तेरी खिदमत करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं यीशु जी। ऐ खुदावन उनकी जिंदगी में तेरा नाम ही जलाल पाए, वो घटते जाए और तू उनमें बढ़ता जा यीशु जी। उनकी सोचों को, ख्यालों को, बातों को, कामों को ऐ खुदावन तेरे सुंदर कदमों में ले आती हूँ। ऐ खुदावन यीशु जी, ऐ खुदावन उनके ऐ खुदावन हर बुरी सोच को, बुरे ख्याल को, ऐ खुदावन बैड स्पिरिट्स को यीशु के नाम से उनकी जिंदगियों से कैंसिल करती हूँ। उनके बच्चों पर ऐ खुदावन बरे का खून मांगती हूँ। ऐ खुदावन यीशु जी, ऐ खुदावन उन दोनों बच्चों को ऐ खुदावन यीशु जी तेरे पाक लहू में छुपा देते हैं। ऐ खुदावन सर से लेकर पांव के तलवे तक ऐ खुदावन तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। ऐ खुदावन हर एक बीमारी से उन्हें महफूज रखना यहोवा जरी। उस घर पर ऐ खुदावन बरे का खून मांगते हैं। ऐ खुदावन चार दीवारी पर बरे का खून मांगते हैं, किचन पर बरे का खून मांगते हैं। ऐ खुदावन यीशु जी हवाओं पर, फजाओं पर बरे का खून मांगते हैं। ऐ खुदावन भाई प्रिंस के कारोबार पर बरे का खून मांगते हैं। ऐ खुदावन यीशु जी, ऐ खुदावन वो जो भी खिदमत कर रहे हैं खुदावन दूसरे ग्रुप में भी ऐ खुदावन तेरे पाक लहू का मस्सा मांगते हैं। ऐ खुदावन उन्हें वैसे लोग देना जो तेरे साथ दिलो जान से लग जाए,
तेरे साथ जुड़ जाए। ऐ खुदावन हम सारा ग्रुप में ऐसे ही है खुदावन, हम सारे ऐ खुदावन दिलो जान से तुझे चाहे। ऐ खुदावन हमारे दिल तो तेरे हैं, हमारी जान भी तेरी है। खुदावन हमें तेरे पाक लहू का रंग लग जाए। ऐ खुदावन जो रंग कोई और हमारी जिंदगियों से तार ना सके, ऐ खुदावन वो रंग हमारी जिंदगी में तेरे लहू का लगे। ऐ खुदावन यीशु जी तेरा रंग जो हमारी जिंदगियों में है खुदावन यहोवा यीशु तेरे मोहब्बत का रंग लग जाए यीशु जी, वो हमारी जिंदगियों में है खुदावन कलरफुल लगन आ जाए यीशु जी। इसी तरह है खुदावन तुझसे मिन्नत करती हूँ सिस्टर रविंदर के लिए, खुदावन उनकी गवाही के लिए शुक्रगुजार है यीशु जी। तो उनकी जिंदगी में काम कर रहा है, इसके लिए शुक्रगुजार है। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है खुदावन यीशु जी। ऐ खुदावन अपनी बंदी को ऐ खुदावन इसी तरह अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर यीशु जी। ऐ खुदावन हमारा तवक्कल ही तू है यहोवा यरी। ऐ खुदावन यीशु जी जो उनका ऐ खुदावन स्टमक का प्रॉब्लम है वो यीशु के नाम से जाता है, यीशु के नाम से। ऐ खुदावन डॉक्टर एंडोस्कोपी कह रहे हैं, लेकिन ऐ खुदावन तू खुद टेस्ट करने वाला खुदा है। ऐ खुदावन यीशु जी तू हमारा ऐ खुदावन तू तबीबे आला है। ऐ खुदावन हम किसी के पास नहीं जाते बल्कि तेरे सुंदर कदमों में जाते हैं। ऐ खुदावन तूने शिफा दे दे, ऐ खुदावन तू शिफा जारी कर दे यहोवा यरी। ऐ खुदावन तूने ने शिफा दे दी, इसके लिए हम शुक्रगुजार है। हम सब मुत्तफिक होकर तुझसे मांगते हैं और पाते हैं यीशु जी। सारी बीमारी जड़ से जाती रहे, जड़ से ऐ खुदावन यीशु के नाम से जाती रहे। ऐ खुदावन यीशु के नाम से उनकी जिंदगी से कैंसिल करते हैं खुदावन, कैंसिल करते हैं। ऐ खुदावन हम सब मिलकर मुत्तफिक होकर ऐ खुदावन तुझसे मिन्नत और फरियाद इल्तिजा ऐ खुदावन तेरे सुंदर कदमों में रख देते हैं खुदावन यीशु जी। ऐ खुदावन यीशु जी तू शिफा दे, ऐ खुदावन तेरी शिफा ऐ खुदावन जो ऐ खुदावन तूने हमारे लिए रख छोड़ी है खुदावन, और वो बरकत जो उनके लिए रख छोड़ी है उनको मांगते हैं उनकी जिंदगी में। ऐ खुदावन यीशु जी बच्चे के लिए ऐ खुदावन वो तेरा मंसूब बने, ऐ खुदावन तेरे नाम को ही जलाल दे। ऐ खुदावन उसकी जिंदगी, उसकी राहें, उसकी सोचें, उसके ख्याल, उसकी बातें यीशु जी तेरे हैंड ओवर कर देती हूँ यीशु जी। उनकी बेटी के लिए ऐ खुदावन जो भी प्रॉब्लम है वो यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए। ऐ खुदावन जो उनको ऐ खुदावन वीजे का प्रॉब्लम है वो भी यीशु के नाम से जाता रहे। ऐ खुदावन सारे प्रॉब्लम जो वो आजादी से है खुदावन तेरे घर में जा सके। ऐ खुदावन सारी ऐ खुदावन रुकावटों को, बंदिशों को ऐ खुदावन यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, कैंसिल करते हैं खुदावन यीशु जी। इसी तरह ऐ खुदावन अपने ग्रुप के ऐ खुदावन बच्चियों के लिए खास कर दुआ करती हूँ। ऐ खुदावन यीशु जी जो भी हमारे ग्रुप में बच्चे हैं छोटे बड़े सबके लिए ऐ खुदावन तेरे सुंदर कदमों में आती हूँ। ऐ खुदावन सबको ऐ खुदावन तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ। ऐ खुदावन ऐ खुदावन यीशु जी ऐ खुदावन उनको वफादार बना यीशु जी, हम तेरे वफादार बने। ऐ खुदावन बच्चियों के लिए ऐ खुदावन वफादारी को मांगती हूँ। ऐ खुदावन यीशु जी अपने माँ बाप के वफादार बने। ऐ खुदावन यीशु जी अपने कलीसिया के, अपने ग्रुप के हर एक मेंबर के खुदावन वफादार बने यीशु जी। तुझसे मिन्नत करती हूँ अब जो स्कूल जाते हैं उनके लिए खुदावन उनके साथ होना। ऐ खुदावन यीशु जी जो भी उनकी जिंदगियों में प्रॉब्लम आई है खुदावन यीशु जी वो यीशु के नाम से जाते रहे। ऐ खुदावन यीशु जी तुझसे मिन्नत करती हूँ अंजना के लिए ऐ खुदावन अच्छे जीवन साथी के लिए ऐ खुदावन तुझसे मिन्नत करती हूँ। ऐ खुदावन यीशु जी ऐ खुदावन तेरे सुंदर कदमों में झुकती हूँ। ऐ खुदावन यीशु जी ऐ खुदावन तू अच्छा बंदोबस्त करने वाला खुदा है खुदावन। यहाँ हमारी सोचें खत्म होती है वहां तेरी शुरू होती है यहोवा यरी। तूने अच्छे प्लान उसकी जिंदगी में रखे हुए हैं। ऐ खुदावन ऐसा ही ईमानदार और ऐ खुदावन तेरे साथ जुड़ने वाला है खुदावन उसे जीवन साथी देना यीशु। ऐ खुदावन उसके माँ बाप की फिक्रों को तू जानता है यीशु जी। ऐ खुदावन यीशु जी ऐ खुदावन हम सब झुकते हैं तेरे कदमों में। ऐ खुदावन लैला सिस्टर को ऐ खुदावन उसके लिए भी अच्छे जीवन साथी के लिए ऐ खुदावन तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावन जो भी है खुदावन यंग बच्चियां है जिनकी शादी है खुदावन उन सबको ऐ खुदावन सिस्टर सुशीला के लिए ऐ खुदावन यीशु जी उसका ईमान तवक्कुल यकीन भरोसा तेरे पर है खुदावन तेरी बंदी ऐ खुदावन डोले ना शर्माए ना घबराए ना बल्कि उसका ईमान और ज्यादा मजबूत होता जाए यीशु जी। ऐ खुदावन
तू उसे अपने नाम और अपने जलाल के लिए बढ़ा यस्सु जी। ऐ खुदावन यस्सु जी, कोई भी Yes. अपनी हमला उसकी जिंदगी में काम ना करने पाए, बल्कि तेरा पाक लहू उसकी प्रोटेक्शन करे। ऐ खुदावन उसकी जो भी प्रॉब्लम है, घर का प्रॉब्लम है, खुदावन तू बंदोबस्त कर। ऐ खुदावन तेरे हाथों में दे देते हैं। ऐ खुदावन तू इंतजाम कर यहोवा जरी। जीवन साथी के लिए भी ऐ खुदावन तुझसे ही मिन्नत और फरियाद इल्तिजा करते हैं। ऐ खुदावन यस्सु जी, ऐ खुदावन यस्सु जी, तू बंदोबस्त कर। ऐ खुदावन यस्सु जी, उसकी जिंदगी में जो तूने प्लान रखे हुए हैं खुदावंद अपनी बच्ची को, ऐ खुदावंद अपने नाम और अपने जलाल के लिए भला। ऐ खुदावंद हमारा तवक्कल यकीन भरोसा तेरे पर है। ऐ खुदावंद तू इसकी जिंदगी में जलाली काम कर, जलाली काम कर यहोवा जरी। ऐ खुदावंद तू ही Yes, बंदोबस्त Lord. कर। ऐ खुदावंद यस्सु जी, ऐ खुदावंद उसकी सोचों को, फिक्रों को, ख्यालों को, बातों को तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ। ऐ खुदावंद यस्सु जी, ऐ खुदावंद घर का भी तू बंदोबस्त करने वाला खुदा है। ऐ खुदावन जहाँ ऐ खुदावन तू ही हर काम में कादर खुदा है। ऐ खुदावन हर पहाड़ को तू मैदान बना सकता है यहोवा जरी। ऐ खुदावन तू यरू की दीवारों को गिरा सकता है, तो ये क्या है खुदावन यीशु जी, तू हर काम को करने में कादर खुदा है। ऐ खुदावन यीशु जी, इंसान होते हुए हम डोल जाते हैं, लेकिन ऐ खुदावन तू ही हमारा मोहकम किला है। ऐ खुदावन यीशु जी, ऐ खुदावन अपनी बंदी को ऐ खुदावन और मजबूत कर, और ऐ खुदावन उसे अच्छा चर्च प्रोवाइड कर, अच्छे लोग दे। ऐ खुदावन यीशु जी, पॉजिटिव थिंकिंग दे। ऐ खुदावन जो अच्छे सोचे रखते हो, जो तेरे साथ मुत्तफिक हो, तेरे साथ जुड़े हो यीशु जी। ऐ खुदावन दिलो जान से ऐ खुदावन तेरे साथ जुड़े हो। ऐ खुदावन यीशु जी, खुदावंद इसी तरह तुझसे शीना के लिए ऐ खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं, उसकी जॉब के लिए ऐ खुदावंद उसे अच्छी जॉब दे, अच्छी जॉब दे। ऐ खुदावंद यीशु जी, ऐ खुदावंद दुआ करती हूँ खास कर उसके भांजे के लिए, ऐ खुदावंद उनकी बहन के लिए, ऐ खुदावंद छोटे बच्चे के लिए। ऐ खुदावंद जो भी प्रॉब्लम आई है वो यीशु के नाम से जाती रहे। सारी बहार की तस्वीरों को यीशु के नाम से उनकी जिंदगी से कैंसिल करती हूँ। ऐ खुदावंद बच्चों को बहाल कर। ऐ खुदावंद उसकी माँ को, ऐ खुदावन जो भी है खुदावन गलतियां खुदाए है वो भी है खुदावन यीशु जी। ऐ खुदावन तूने माफ कर यीशु जी, माफ कर, माफ कर। ऐ खुदावन बच्चे को ऐ खुदावन सेहत और तंदुरुस्ती दे, उम्र की दराजी दे ऐ खुदावन यीशु जी। इसी तरह ऐ खुदावन उनकी बेटी के लिए भी ऐ खुदावन ये बहार की तस्वीर को उनकी जिंदगी से कैंसिल करती हूँ ऐ खुदावन यीशु जी। ऐ खुदावन यीशु जी दुआ करती हूँ ऐ खुदावन यीशु जी, तुझसे मिन्नत तो करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ उनके घर के लिए, उनके घर के दरवाजों, खिड़कियों पर, हवाओं पर, फजाओं पर बरकाहून मांगती हूँ ऐ यीशु जी। ऐ खुदावन यीशु जी, हम मुत्तफिक होकर तुझसे मिन्नत करते हैं ऐ खुदावन उस बच्चे को शिफा दे, शिफा दे ऐ खुदावन, शिफा दे ऐ खुदावन यीशु जी। तूने हमें कल बताया कि तूने शिफा दे दी है, लेकिन ऐ खुदावन यीशु जी हम फिर भी मुत्तफिक होकर दुआ करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं ऐ खुदावन जो हम में कमी है, कमजोरी है, वो भी यीशु के नाम से जाती रहे। के नाम से। यस खुदावन लॉर्ड। यीशु जी, तुझसे दुआ करती हूँ ग्रुप के एक एक मेंबर को ऐ खुदावन तेरे पाक कदमों में लाती हूँ, तेरे सुंदर कदमों में लाती हूँ ऐ खुदावन यीशु जी। बाजी सरैया के लिए दुआ करती हूँ, सैट्रिक भाई के लिए ऐ खुदावन, सारा समर को ऐ खुदावन, सबको ऐ खुदावन तेरी पाक सलीब के नीचे लाती हूँ ऐ खुदावन, तेरे सुंदर कदमों में लाती हूँ। ये फैमिली तेरी है ऐ खुदावन, ये तेरे लोग हैं ऐ खुदावन, इनके चुगे तेरे आती रच मांगती हूँ ऐ खुदावन यीशु जी। सैट्रिक यस भाई के लिए ऐ खुदावन तुझसे ऐ खुदावन मिन्नत करती हूँ कि ऐ खुदावन तूने कलाम के बेतों से आशकारा कर, ताकि वो हमारे साथ शेयर करे ऐ खुदावन यीशु जी। मेरे दिल की ख्वाहिश है खुदावन यीशु जी। ऐ खुदावन तू अपने बंदा को जोर दे, ताकत दे, हिम्मत दे ऐ खुदावन, सारे जुए यीशु के नाम से टूट जाए ऐ खुदावन के यीशु नाम जी। लॉर्ड। यस लॉर्ड। ऐ खुदावन तू मुझे साथ दे। यस लॉर्ड। ऐ खुदावन मैं नहीं जानती, लेकिन तू जानता है, जो भी कमी कमजोरी आई है वो यीशु के नाम से जाती रहे यीशु के नाम से। ऐ खुदावन। बाजी सरैया के लिए शुक्रगुजार है, तेरी बंदी हर वक्त हर घड़ी तैयार रहती है जंग के लिए ऐ खुदावन, तेरी बंदी को ऐ खुदावन तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ ऐ खुदावन यीशु जी। यस इसी तरह सारा समर के लिए, इस ग्रुप के लिए ऐ खुदावन, हर ऐ खुदावन यीशु जी तेरा फजल वाला हाथ चाहती हूँ ऐ खुदावन, तेरा कभी हाथ चाहती हूँ उस घर पर, उनके रुपए पैसे पर, उनके किचन पर है खुदावन यीशु जी, उनकी हर जरूरत पर है खुदावन बरकत मांगती हूँ ऐ खुदावन यीशु जी।
बच्चों की पढ़ाई पर है खुदावन, रुपए पैसे पर है खुदावन, तेरा पाक लहू को मांगती हूँ। ऐ खुदावन सिस्टर नीलम के लिए दुआ करती हूँ। ऐ खुदावन यूनुस भाई के लिए, उनके कारोबार के लिए खुदावन यीशु जी, खुदावन सबको है खुदावन यीशु जी तू उनके साथ हो। है खुदावन यीशु जी, तेरा बरे का खून उनके घर की चुगीत मांगती हूँ। ऐ खुदावन दीदी के लिए शुक्रगुजार है। ऐ खुदावन तूने उसकी सारी टेंशनों परेशानियों को दूर किया यीशु जी, इसके लिए शुक्रगुजार है। ऐ खुदावन अपने बंदे को अपने नाम और जलाल के लिए बढ़ा। इसी तरह अपने ग्रुप के खुदावन सिस्टर सनिया के लिए शुक्रगुजार है। ऐ खुदावन यीशु जी, उसके बच्चों के लिए है खुदावन, भाई के लिए शुक्रगुजार है खुदावन यीशु जी, उनके घर के चुगीत भी तेरे पाक लहू को मांगते हैं। ऐ खुदावन यीशु जी, इसी तरह अरूसा के लिए है खुदावन, दुआ के लिए है खुदावन यीशु जी, शुक्रगुजार है। ऐ खुदावन सारी प्रॉब्लम टेंशन परेशानियां यीशु के नाम से जाती रही उनकी जिंदगियों से। ऐ खुदावन उनके घरों के चुगीत तेरे आती रहे, तेरे पाक लहू की बाढ़ को मांगती हूँ। इसी तरह किंजा के लिए दुआ करती हूँ खुदावन यीशु जी, किंजा को तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ। ऐ खुदावन यीशु जी, ऐ खुदावन पता नहीं क्या वजह है कि वो मीटिंग में नहीं आ, लेकिन ऐ खुदावन तू जानता है। ऐ खुदावन यीशु जी, उसको तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ। ऐ खुदावन यीशु जी, उसकी सारी टेंशन परेशानियों को तो दूर कर यहोवा जरी, ताकि ऐ खुदावन वो रेगुलर है खुदावन तेरे साथ जुड़े। और ऐ खुदावन उसकी जिंदगी में जो भी है खुदावन टेंशन परेशानियां मुश्किलें हैं, वो यीशु के नाम से जाती रहे। यीशु के नाम से ऐ खुदावन यीशु के नाम से उसकी जिंदगी से कैंसिल कर ऐ खुदावन अपनी भाभी के लिए दुआ करते हैं, सिस्टर तबस्सुम के लिए। ऐ खुदावन यीशु जी, उनको तेरी पाक सलीब के नीचे लाते हैं, सर से लेकर पांव के तलवे तक तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ। ऐ खुदावन भाई बाबर के लिए दुआ करती हूँ, अच्छे रोजगार के लिए सारे बंधन यीशु के नाम से खुल जाए। ऐ खुदावन तू अच्छा रोजगार उन्हें दे। ऐ खुदावन इफ्सस के लिए, मैरी के लिए, ऐ खुदावन तू उन्हें रूहानी बरकतों से, रूहानी नेमतों से, रूहानी फलों से भर दे यीशु जी, उनकी जिंदगियों में तेरे नाम का ही जलाल मिले। ऐ खुदावन यीशु जी, उस घर के लिए, उस घर की हर जरूरत को तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ। रुपए पैसे पे खुदावन तेरे पाक लहू को मांगती हूँ, कारोबार पे तेरे पाक लहू को मांगती हूँ। इसी तरह से मोती इसके लिए दुआ करती हूँ। ऐ खुदावन तेरा बच्चा है, तू माँ बाप से दूर है, लेकिन ऐ खुदावन तेरे सुंदर कदमों में है। ऐ खुदावन यीशु जी, तू उसकी कुंभक बनना, उसकी सिपर बनना, उसकी ताकत बनना, उसका भरोसा बनना यीशु जी। तुझसे मिन्नत करती हूँ अपने ग्रुप के एक एक मेंबर के लिए। है खुदावन जिनके नाम मैंने नहीं भी लिए तू जानता है। खुदावन जो नहीं भी आए उनको भी तू जानता है। बाजी समीना के लिए, बाजी नाइला के लिए है खुदावन यीशु जी, तुझसे मिन्नत करते हैं, उनके घरों के चगे तेरे पाक लहू को मांगते हैं। ऐ खुदावन अपने आप को तेरे सुंदर कदमों में लाती हूँ। ऐ खुदावन यीशु जी, है खुदावन सर से लेकर पाँव के तलवे तक अपने आप को तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ। है खुदावन जहाँ भी मेरे से कोई गलती होता है खुदावन कर जाता है, इंसान है खुदावन, इंसान होते हुए खुदावन तू मुझे माफ कर यहोवा जरी, तू मुझे माफ कर, तू मुझे बहाल कर, रहम कर, फजल कर, माफ कर यीशु जी। तुझसे मिन्नत करते हैं, अपने बच्चों को है खुदावन तेरे सुंदर कदमों में लाती हूँ, रोशनी को, नैयर को, उजाला को है खुदावन, जैसे इनके नाम है वैसे ही इनकी जिंदगी में तू काम कर। है खुदावन यीशु जी, खुदावन यीशु जी, ये नूर के फरजांद है खुदावन, ये बच्चे मेरे नहीं तेरे हैं यीशु जी, इनकी जिंदगी में तेरे नाम को ही जलाल मिले यीशु जी, ये तेरे मंसूर है खुदावन यीशु जी, ये तेरे है खुदावन। इसी तरह है खुदावन अपने जीवन साथी को है खुदावन तेरे पाक सुंदर हाथों में दे देती हूँ। खुदावन सर से लेकर पाँव के तलवे तक उनकी सोचों को, ख्यालों को, बातों को, कामों को तेरे कदमों में लाती हूँ। खुदावन यीशु जी, हम मुत्तफिक होकर है खुदावन तेरे नाम को जलाल दिया करें और तेरे नाम का ही प्रचार करें यीशु जी। खुदावन यीशु जी, तो हमारी जिंदगियों से है खुदावन, हमारे बोलचाल से, हमारे किरदार से तेरे नाम को जलाल मिले। सब कुछ तेरे कदूस और जलाली नाम से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद। अब हमारे खुदा का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान
हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड Amen. ब्लेस यू। God bless you गॉड too. ब्लेस यू। आज मैंने इस तरह देखा है कि खुदावन का मसा हमारे ऊपर इस तरह ठहरा हुआ है कि जैसे त्रिकोण में छत बनी होती है ना, ऊपर आसमान देखा है और नीचे मैंने देखी छत ऐसे हमारे ग्रुप के ऊपर बनी हुई है, और सारी ब्लू है, और जो आसमान है वो ब्लू नजर आ रहा है और जो छत है वो वाइट है। और साथ ही खुदा की मुझे आवाज जब आई आज, और मैंने देखा है कि एक जैसे मसा जो है हमारे ऊपर उंडेला गया है, वो वाइट सा मैंने देखा है कि आसमान से हमारे ऊपर उंडेला जा रहा है, और ईमान की जो रूह है खुदा ने आज वो हमें हमारे ऊपर उंडेली है। और खुदा उनका शुक्र हो कि आज जो मैसेज है उस हिसाब से खुदा ने हमें आज ईमान की रूह से भरा है। उसके लिए खुदा का शुक्र करती हूँ। और जब सुरैया और सैड्रक के लिए प्रेयर कर रही थी सराफीन, तो मैंने देखा है ऐसे जैसे बाइबल है, यानी बुक मैंने देखी है ऊपर, जिससे कह लें कि फ़ज़ा में, और उसके अंदर से बुक जो है उसके अंदर से पानी जो है वो गिर रहा है, और मैंने देखा कि इनके ऊपर गिर रहा है। तो मेरा ईमान है कि खुदावंद जो है इनको यानी कलाम से जो है गुस्ल दे रहा है, कलाम से इनको नहला रहा है। तो खुदावंद का हम शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए जो खुदावंद ने गीतों के ज़रिए हमारे साथ किया, जो वफ़ा के ज़रिए खुदावंद ने किया, और जो रोया के ज़रिए, दुआ के ज़रिए खुदावंद ने हमारे साथ किया। अगर किसी के साथ खुदावंद ने कोई रोया खुदावंद ने दिखाई है, या किसी को टच किया है खुदावंद ने, तो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। किसी को तसल्ली मिली है आज कलाम से, या गीतों में, या शफ़ा मिली है, तो वो शेयर कर सकता है। जी, रविंदर आपने कुछ कहना? नहीं नहीं ओके, ओके, ठीक है। हाँ जी, किसी और को खुदावंद ने कुछ दिखाया, या कोई रोसा, सनिया, सोनिया, या वफ़ा, जब आप कलाम पेश कर रही थी तो खुदावंद के एक मस्से को, हमने तो मस्से को फ़ील किया कि आपके भी खुदावंद का एक मज़ा जो है फ़ील हुआ। जी, सोनिया। हाँ जी सच्ची प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, जो सिस्टर ने मैसेज दे रहे ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ प्रेज़ गॉड, ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जी, रोसा कुछ कहना है? हाँ जी, मैंने मतलब कि ऐसे लग रहा था कि जैसे जब ना सिस्टर जी मैसेज दे रहे थे ना, वफा सिस्टर, तो हुँ, ऐसे हुँ। लग रहा था कि मेरे लिए बात हो रही है। तो हुँ, हुँ। मैं उस वक़्त ना रोटी बना रही थी, तो दिल में ऐसे दुआ कर रही हूँ कि मैं भी अपनी ज़ुबान खोलूँ कि मतलब मेरे लिए कहा जा रहा है कि तू भी अपने ईमान को मज़बूत कर। खुदावंद के लिए अपनी आवाज़ को खोल, अपनी ज़ुबान को खोल। तो मुझे हुँ, मुझे बहुत बरकत मिली है। आज का मैसेज मेरे लिए, मैं कहती हूँ कि मेरे लिए था। प्रेज़ बहुत गॉड, ब्लेसफुल। प्रेज़ गॉड। जी। जी, किसी और ने कुछ कहना है? खुदा उनका शुक्र करते हैं, और उसा जिस तरह आपकी एक जैसे कह लें दिल की डिज़ायर थी, खुदा ने उसी तरीके से कह लें हमारे दुआओं का जवाब दिया है। और कलाम के जैसे ज़रिए भी हमें पता चला कि ईमान के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ईमान ही वो जैसे कह लें जो है बाकी के दरवाज़े खोलता है, जंग के लिए जब हम निकलते हैं ना। तो खुदा ने वो ही आज मसा जो है हमारे ऊपर अंडेला है, इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट जी फिर।